Let's start. So, bache, we were doing water a precious resource. Almost all the topics we had covered, except I think last one topic is left. We had discussed water is an important resource of our body. What are its advantages or why do we use it simply? और प्लीज जब ऐसा क्वेश्चन आएगा सिर्फ ड्रिंकिंग बाथिंग नहीं लिखना, उसको एक सिंगल पॉइंट कंसिडर किया जाएगा. ठीक है, अलग अलग पॉइंट्स बनाओ, उसको एक्सप्लेन करो. 7th क्लास वाला आंसर होना चाहिए, 2nd क्लास वाला नहीं होना चाहिए. ठीक है. देन वी हैड डिस्कस्ड फॉर्म्स ऑफ वाटर, what are the important sources of water, and out of these sources we had discussed about groundwater in detail. ग्राउंड वाटर को हमने डिटेल में स्टडी किया था, that how can we refilter it या recharge it, ग्राउंड वाटर क्या होता है, वाटर टेबल क्या होता है, यही सारी चीजें हमने डिस्कस की हैं. Then what are the main reasons of depletion of this groundwater? And then at last we had discussed about the few resources, few techniques that we can use to save our fresh water, or we can say that techniques for water management, जिसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, देन कंस्ट्रक्शन ऑफ बावरीज है, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स है, एंड ऑब्वियसली जनरली बात करें तो सबसे पहले सेव वाटर, राइट. तो वी शुड प्रिवेंट वाटर. हाँ जी बच्चे, लास्ट में एक आपका टॉपिक है कि इफ द वाटर इज नॉट सेव्ड देन व्हाट वी हैव टू फेस. लास्ट पेज पे आपके लास्ट टॉपिक दिया हुआ है इस चैप्टर के, दैट इज व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ स्कार्सिटी ऑफ वाटर. इफ वाटर इज टू बी डिक्रीज्ड, ठीक है, beyond the amount, then what effects we have to suffer? Effects of water scarcity. Effects of scarcity of water. Then what are they? Just 1 minute. Sure, bache, Khushi. I will definitely share it in your main group also. No issue. Okay, जी, I will definitely share it, but it will take some time. Okay, हाँ जी. Effects of water scarcity. Firstly, though, it is non-availability of food. Food will not be available in that case. So I'm just writing the headings. So explanation part you guys will cover. If there is less water available, how would the plants grow? There might be a shortage of water. How would the plants grow? And if there will be no plants, the availability of food definitely decreases. Yes, you can use these words that people can't get proper nutrition. बिल्कुल ठीक है, आप ये भी यूज करते हो. ठीक है. सेकेंड, अगेन non-availability of oxygen. ठीक है, or there should be a less amount of oxygen, or you can say that ecological balance will be changed, will be affected. ठीक है, balance of the nature will be affected. Why? Because if the water is not available, plants will not grow properly, then they will not take out the carbon dioxide and releases oxygen. Then the amount of oxygen may decrease and carbon dioxide may increase. We all know that जो fixed percentage है oxygen और carbon dioxide की वो vary कर जाएगी, right? Then thirdly, we also had studied rainfall. ठीक है, it should be less, or you can say that the water cycle will be disturbed. ठीक है जी, वाटर साइकिल विल बी डिस्टर्ब्ड. वाटर साइकिल डिस्टर्ब होने का मेन रीजन भी आप प्लांट्स भी कंसिडर कर सकते हो.
Why? Because in plants lot of transpiration occurs. काफी सारी transpiration होती है, and if plants will not be there, the transpiration will not be there. ठीक है, और अगर transpiration नहीं होगी तो vapors clouds formation decrease हो जाएगी. If the cloud formation will be decreased, then obviously there should be less rainfall. ठीक है जी. और बच्चे, any other point in your mind, then you can also ask, discuss it with me. No. हाँ जी गुनीत. Guneet, drought, conditions of drought may occur. That's right. The world may come to an end. The world may Come to an end. come to an end. That may be a long result of scarcity of water. ठीक है. Yes. Life will be at risk. ठीक है जी. हाँ जी. संचित जी. मैम सेकंड पॉइंट क्या लिखा है आपने? नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन. ओके. ठीक है. या disturbance of balance of carbon dioxide and oxygen. Diseases may not be cured. ठीक है. Birds can die. हाँ, birds can die या life may be at risk. Risk to life. ठीक है. Many diseases may occur. Diseases may occur or may not be cured. ठीक है. Lot of एक मिनट. फाइट्स. ओके जलश, ये पॉइंट आप लिख सकते हो, बट इसको अवॉइड करो क्योंकि ये टोटली ह्यूमंस पे बेस्ड है. ठीक है. और ये चीजें जो हैं ये नेचर पे बेस्ड है. There may be a fight between the nations for water. That is not totally wrong, but अगर हम नेचर की बात करें, ह्यूमंस को सिंगल कंसिडर करके बात करें, तो ये वाले पॉइंट्स कंसिडर कर लो. बाकी आपका पॉइंट गलत नहीं होगा, बट ट्राई टू अवॉइड सच पॉइंट्स. ठीक है. और बच्चे किसी को कोई डाउट? इसके अलावा बच्चे आपकी बुक में देयर आर 2 केस स्टडीज इन ब्लू बॉक्सेस. काइंडली गो थ्रू दैट. आपकी बुक में 2 केस स्टडीज है. एक बार जरूर उनको व्यू कर लेना. एक पेज नंबर 201 पे और 202 पे. 201 पे जो केस स्टडी है दैट इज अबाउट द कच्छ एरिया ऑफ गुजरात. उसमें यही दिया हुआ है दैट द विलेजर्स दे आर यूजिंग द वाटर रिसोर्सेज. वाटर हार्वेस्टिंग मेथड्स उन्होंने शुरू किए हैं जिनकी वजह से उनको वाटर काफी अवेलेबल हो गया. और सिमिलरली 202 पे जो केस स्टडी है उसमें राजस्थान की 5 रिवर्स के बारे में बताया गया है दैट हैज बीन ड्राइड अप. ठीक है. और उनको अब वहां पे वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे हैं ताकि उनको फिर से रिवाइव किया जा सके ताकि दोबारा उनमें पानी आ सके. ओके, काइंडली गो थ्रू दीज केस स्टडीज. अगर किसी को कोई डाउट होगा तो वी विल डिस्कस इट लेटर, एंड इफ इट इज क्लियर शैल वी मूव टू द क्वेश्चन आंसर्स पार्ट. बैक एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चन आंसर्स करें? ओके, सो लेट अस डिस्कस back exercises and question answers. Kindly please open your books at page number 203, I think. One second. Let me check. Yes, kindly please open page number 203. Right. Hanji. Firstly, true, false, and I hope all of you are ready. So I'll ask questions from you guys. Global warming, yes, you can write the global warming as the effect of water scarcity. ठीक है. हाँ जी. Ridhima, first true false. The fresh water stored in the ground is much more that is present in lakes and rivers. Ridhima, ground water जो है उसकी अमाउंट ज्यादा है फ्रेश वाटर की.
Yes or no? Hurry up. Akshat, bolo. True. True. Yes, right, Ridhima. First is true. Second, Akshat, water shortage is a problem faced by the people living in rural areas only. क्या सिर्फ रूरल एरियाज वाले पीपल के लिए वाटर प्रॉब्लम है? मितुल? मैम फॉल्स। ठीक है, फॉल्स. हाँ जी मितुल, थर्ड वन. वाटर फ्रॉम द रिवर्स इज ओनली सोर्स ऑफ इरिगेशन इन द फील्ड. बोल खुशी. Ma'am, false. False, right. Garvit, rain is the ultimate source of water. Ma'am, false. मैम सोर्स है पर सिर्फ मतलब वो सिर्फ वो नहीं है. आंसर क्या आएगा, फॉल्स या ट्रू? मैम ट्रू. ट्रू आएगा. अल्टीमेट है. यस इट मे बी अ ट्रू. अल्टीमेट मीन्स कि आफ्टर ऑल रेन से ही हमें ग्राउंड वाटर मिलता है. ठीक है, और लेक्स का, रिवर्स का, वो सब वाटर रिवाइव होता है थ्रू दी रेन. और अगर रेन नहीं होगी तो हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर अल्टीमेटली खत्म हो जाएगा. ठीक है, वाटर कौन सा? दैट वी कैन यूज फॉर अवर डेली नीड्स. ठीक है, दैट इज व्हाई इट मे बी ट्रू. हाँ जी, हाँ जी दृष्टि. Give the next answer. Explain how groundwater is recharged. Groundwater is recharged by the process of filtration and through rain. Infiltration means the process of seeping the water into the ground with by rain. बिल्कुल ठीक है बच्चे, आंसर यही आना. लैंग्वेज आपकी अपनी है, अदरवाइज आंसर वन वर्ड ही है, दैट इज इनफिल्ट्रेशन. अब एक्सप्लेनेशन पार्ट में आप उसको इनफिल्ट्रेशन की डेफिनेशन लिख सकते हो थ्रू दी हेल्प ऑफ रेन. ठीक है, सीपिंग ऑफ ग्राउंड वाटर थ्रू दी रेन. और इसके अलावा कोई और पॉइंट किसी के माइंड में, वी कैन शेयर दैट आल्सो. एफॉरेस्टेशन. एफॉरेस्टेशन से बेटे ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होता. मैम उससे तो फिर हाँ जी मैम एफॉरेस्टेशन से रेन आएगी, फिर वो चार्ज हो जाएगा ग्राउंड वाटर. बिल्कुल ठीक है बेटे, एफॉरेस्टेशन से रेन होती है, लेकिन जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है दैट इज सीपिंग थ्रू दी सीपिंग ऑफ वाटर. ग्राउंड जितना वाटर सीप करेगा. हाँ, बाकी इसमें अगर हम ऐसे पॉइंट्स कंसिडर करें तो आप ये भी कर सकते हो, इंक्रीजिंग द फॉरेस्ट एरिया या ग्रीन एरिया. ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग आप इसमें ऐड कर सकते हो जमेश. ठीक है जी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग दैट इज द जनरल टेक्निक, और कॉमनली जो नेचुरल है दैट इज इनफिल्ट्रेशन. तो इसमें आप दो पॉइंट कंसिडर कर सकते हो, फर्स्ट इज इनफिल्ट्रेशन, सेकंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग. और दोनों को प्लीज एक्सप्लेन कर देना. नेक्स्ट आर्यन, आंसर करोगे बच्चे. देयर आर 10 ट्यूबवेल्स इन अ लेन ऑफ 50 हाउसेस. 10 ट्यूबवेल्स है. व्हाट कुड बी द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन द वाटर टेबल? अगर ये 50 हाउसेस 10 ट्यूबवेल्स को यूज कर रहे हैं तो उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा? प्रभनूर, नहीं. हरमन, क्या होगा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट? replenished, reduce of water table, water will be decreased. हाँ जी, कहाँ गए बच्चे आज? हिमांशी, दोगे आंसर? हाँ जी, क्या होगा? A huge amount of water will be pumped out from these 10 tubes and it will result in the depletion of the groundwater. That is correct बेटे. And if large amount
depends upon the amount of water used by these houses, ठीक है, by the people of these houses. If large amount of water is taken out from the ground, then definitely water table depletes. ठीक है, depletion of the water table will take place, and ultimately there is a shortage of rain, shortage of groundwater. ठीक है, water level will fall down. Sanchit, next question बेटे. मैम फोर्थ. हाँ जी, fourth. You have been asked to maintain a garden. How will you minimize the use of water? Yes. To ये minimize हाँ, the wastage of water, we will use the drip irrigation, which through the water at the base of the plant. बिल्कुल ठीक है. First point आ गया. Use drip irrigation method. हाँ जी, और कोई Ma'am. point है? We will check the leakage in the pipes. Second, check the leakage in the pipes. और Pridima? Arrange small pits for rainwater harvesting. Right. Third point, arrange small pits for water harvesting. तो 3 point तो हमारे हो गए. बेटा जिसका पिछला रह गया हम बाद में दोबारा डिस्कस कर लेते हैं, पहले ये वाला कर ले. फोर्थ क्वेश्चन 3 पॉइंट्स उसने बताया. एक ड्रिप इरिगेशन. दैट्स राइट जलश, मैं इसी पॉइंट को वेट कर रही हूँ. एक मिनट रुक जाओ. फर्स्ट आपने बताया ड्रिप इरिगेशन. सेकेंड, रेगुलर चेकिंग ऑफ लीकेज फ्रॉम द पाइप्स एंड टैप्स. थर्ड आपने क्या बताया था? हाँ, मेक स्मॉल पिट्स फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग. और कोई पॉइंट? मैम एक और है. बोलो. मैम वी विल यूज रेन वाटर. वी विल, आपने उस थर्ड पॉइंट में बोल तो दिया, अरेंज स्मॉल पिट्स फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग. रेन वाटर ही यूज करेगा. दैट्स राइट जलश, ये पॉइंट में वेट कर रही हूँ, ये आना चाहिए दिमाग में. The water which is leaking from the another plant, we can put into the another plant. बच्चे अगर ड्रिप इरिगेशन हो गई तो लीकेज का तो पॉइंट ही नहीं है ना. मैम जो हम होल्स करते हैं पॉट्स में ताकि पानी बाहर आ जाए. हाँ, बट अगर हम स्मॉल सा गार्डन बनाते हैं तो दैट इज इन द ग्राउंड, और जो पानी बाहर आता है दैट इज टू बी यूज्ड, वो तो साथ ही यूज हो जाएगा. सानिया बावरीज. सानिया यहाँ पे बावरीज हम नहीं कंसिडर कर सकते वर्ड. हमने स्मॉल पिट्स ऑलरेडी ले लिया हुआ है. यस, वी यूज रेन वाटर फॉर फ्यूचर यूज. मैंने एक एग्जांपल आपको स्कूल की दी थी. स्कूल में कैसे पानी यूज हो रहा है? We can treat the wastage of water. Yes. Jalash, now will you repeat the point? Yes. Jalash, unmute yourself. Yes, ma'am. Reuse of wastewater. Wastewater can be treated and reused for plantation. ठीक है जी. Reuse for the wastewater. Yeah, using a wastewater for plantation after treatment. ठीक है. There are 3 to 4 points. Main points आपको बता दिए. Please explain it in 1 or 2 lines. ठीक है. Please explain all the points. Next, explain the factors responsible for the depletion of water table. Already we had discussed about that. Hanji, Anmol Singh, will you help? Anmol, what are the factors responsible for the depletion of water table? That's right, Samriddhi. First factor is growing population या increased population. ठीक है. Explanation part आपको आता है कि as the population goes on increasing, the use of water is increasing. पर दृष्टि पॉइंट क्लियर नहीं है, वर्ड क्लियर नहीं हुआ बेटे. तो फर्स्ट पॉइंट तो आ गया इंक्रीज्ड पॉपुलेशन. सेकेंड पॉइंट करेक्ट सानिया है, इंक्रीज्ड इंडस्ट्रीज, deforestation, overuse. Right. Overuse of water. We are using the water beyond the limits. Second, increase in industries.
वेस्टेज ऑफ वाटर। बेटे स्कार्सिटी ऑफ रेन वाला नहीं आएगा, हाँ लिख सकते हो क्योंकि हम डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल की बात कर रहे हैं तो लिख सकते हो। सो अल्टीमेटली जो 5 to 6 पॉइंट्स यहाँ पे आप लोगों ने टाइप किए हैं, फर्स्ट आपने इंक्रीज पॉपुलेशन, इंक्रीज इन दी इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, ओवर यूज या फिर वेस्टेज ऑफ वाटर, थर्ड स्कार्सिटी ऑफ डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, और डिक्रीज इन द इफेक्टिव एरिया। बेटे हम हाँ डिक्रीज इन द इफेक्टिव एरिया फॉर द सीपेज ऑफ वाटर, बिल्कुल ठीक है, इफेक्टिव एरिया भी हमारा कम हो रहा है और ये सारे पॉइंट्स मेरे ख्याल से हमने किया हुआ है, ठीक है। इसमें आप एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो, लैक ऑफ वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स। अभी भी हम वाटर कंजर्वेशन की टेक्निक्स काफी कम यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हो, बाकी हमने इन डिटेल की हुई। इज दैट ओके विद ऑल? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, fill the blanks with the appropriate answers. हाँ जी श्रेया, फर्स्ट people obtain groundwater through dash and dash. Sameer, right? Tube wells and hand pumps कर ले, through wells, tube wells, hand pumps, ठीक है। रिहानी का 3 forms of water, ठीक है बच्चे, ठीक है दृष्टि, राइट। समीर बोलो, स्पीक आउट दिस आंसर। Solid, liquid, gas. Good. Third, the water bearing layer of earth is समृद्धि, राइट खुशी, समृद्धि क्या बोलते हैं? Yes, ma'am. Aquifer. It is aquifer, ठीक है, ऑलरेडी हमने कर लिया हुआ है। वैभव, द प्रोसेस ऑफ वाटर सीपेज इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड, सीपिंग ऑफ वाटर को क्या बोलते हैं वैभव? Infiltration. राइट बच्चे, इट इज इनफिल्ट्रेशन। बेटा प्लीज बी अटेंटिव इन द क्लास। हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट इट इज वन वर्ड, एमसीक्यू है, एक सेकंड बेटा। हाँ जी हार्दिक, कैन यू टेल विच वन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर शॉर्टेज? वाटर शॉर्टेज के लिए क्या चीज नहीं रिस्पॉन्सिबल? रैपिड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, हैवी रेनफॉल, मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज। जिन बच्चों ने टाइप किया ठीक है, दृष्टि, सक्षम शर्मा, ऑनलाइन होते हो तो कम से कम कर तो दिया करो। प्रभनूर, जसलीन, Ma'am, can I tell? हाँ जी बताओ समृद्धि, बता दो फटाफट। Ma'am, heavy rainfall. हैवी रेनफॉल, ठीक है, सब बच्चों ने टाइप किया है। गर्वित, जलश, समृद्धि, सानिया, खुशी, सबका ठीक है, द आंसर इज हैवी रेनफॉल। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट, द टोटल वाटर in lakes and rivers of the world remain constant. Underground water remains constant. In the sea and ocean of the world remains constant. Of the world remains constant. Correct बच्चे, the water in the world remains constant. ठीक है, ग्राउंड वाटर भी कम ज्यादा हो सकता है, सी और ओशन का वाटर भी कम ज्यादा हो सकता है, लेक्स और रिवर्स में भी कम ज्यादा हो सकता है, बट अल्टीमेटली इस वर्ल्ड में जितना भी वाटर है वो कांस्टेंट रहेगा। अब वो कहाँ पे रहता है? इट डिपेंड्स अपॉन अस एंड आवर एक्टिविटीज मोस्टली। ठीक है जी। लास्ट इज मेक अ स्केच शोइंग ग्राउंड वाटर एंड वाटर टेबल एंड लेबल इट। इज द स्केच क्लियर टू ऑल?
ऑलरेडी मैं बनवा भी चुकी हूँ आपको। ग्राउंड वाटर का स्केच वाटर टेबल का वी हैड ऑलरेडी डन। इज दैट क्लियर टू ऑल, या उसके रिगार्डिंग किसी को कोई डाउट है? Yes, Khushi, I'm moving to that point, बच्चे। हाँ जी बच्चे, on your fair notebooks, you have to write question number 2, 3, 4, 5 and 8 है या 9 है? स्केच बनाना है, मेरे ख्याल से कुछ बच्चों ने तो शायद बना भी लिया होगा। 9, ठीक है। These question you have to be done on fair notebooks. Yes, बच्चे, still if there is any doubt, you are most welcome to ask. I think that's all for today.